Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ambreen Arshad, lecturer in computer science, currently working at Government College for Women, Shara Liaquat, Karachi. Today we will discuss about functions from chapter number 9 for class 2nd year. So first of all, what is C function? A large C program is divided into basic building blocks called C function. C function contains set of instructions enclosed by a curly braces which performs a specific operation in a C program. Actually, collection of these functions creates a C program. A function is a group of statements that together perform a task. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को मिला के कोई ना कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है और वो जो टास्क परफॉर्म किया जाता है वो बेसिकली फंक्शन ही होता है जो सी के अंदर यूज किया जाता है. सो यूजेस ऑफ सी फंक्शन. C functions are used to avoid rewriting some logic code again and again in a program. There is no limit in calling C functions to make use of same functionality wherever required. We can call functions any number of times in a program and from any place in a program. A large C program can easily be tracked when it is divided into functions. The core concept of C functions are reusability, dividing a big task into small pieces to achieve the functionality, and to improve understandability of very large C programs. Types of functions. There are two types of functions. Functions can be classified into two categories. Number one is library function. Library function is also called predefined function. And second one is user defined function. So first of all, library function. Library functions in C language are inbuilt functions which are grouped together and placed in a common place called library. Each library function in C performs specific operations. We can make use of these library functions to get the predefined output instead of writing our own code to get those outputs. The library functions are created by the person who designed and created C compilers. Examples of predefined functions are library functions. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से बने हुए बाय डिफॉल्ट किसी न किसी कोड के अंदर हेडर फाइल के अंदर उसका कोड मौजूद होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो फंक्शन पहले से बनाए हुए होते हैं जो यूजर नहीं बनाता. यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ हेडर फाइल्स जो कि कोड होते हैं आपके इनपुट या आउटपुट फंक्शंस के. तो stdio.h जो कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए यूज सपोर्ट करता है, उसका कोड उसके अंदर मौजूद होता है. यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन लाइक इन scanf एंड printf जो आप यूज करते हैं. सेकेंड वन इज string.h जो कि स्ट्रिंग के लिए हेडर फाइल हम यूज करते हैं. यूज टू परफॉर्म स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस लाइक स्ट्रिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग कॉपी. जब हमें स्ट्रिंग की कॉपी मालूम करनी होती है तो हम ये हेडर फाइल यूज करते हैं. conio.h जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है जो कि सपोर्ट करता है आपके क्लियर द स्क्रीन, getch के कीबोर्ड टू गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड. आपको पता है कि वो यूज किए जाते हैं उसके लिए. तो ये वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से बने हुए होते हैं बाय डिफॉल्ट. किसी न किसी इनका कोड मौजूद होता है हेडर फाइल के अंदर और इसे यूजर यूज कर सकता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर. सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस.
A user-defined function is a programmed routine that has its parameters set by the user of the system. A user-defined function is a function provided by the user of a program or environment. A user-defined function is a common fixture in a programming languages and the main tool of programmers for creating. अब जब यूजर डिफाइंड फंक्शन बने हुए थे, प्री डिफाइंड फंक्शन बने हुए थे, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों बने ये हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप समझे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जो यूजर अपनी मर्जी से बनाता है, जहां यूजर की अपनी चॉइस से उसको नीड होती है कि मैं अपने प्रोग्राम में कुछ अलग कुछ नया करना चाहता हूं, अपनी चॉइस से अपने फंक्शन में डिफरेंट टास्क को जो है सॉल्व करना चाहता हूं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया गया ताकि यूजर अपनी मर्जी से कोई भी टास्क को अचीव कर सके जो वो चाहता है, अपनी चॉइस से प्रोग्राम को बना सके। सो क्वेश्चन इज दैट कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की नीड क्यों हुई जबकि प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद थे। तो आखिर क्या वजह थी, क्या रीजन था कि हमें जरूरत पेश आई कि यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होना चाहिए, बनाना चाहिए। सो नीड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, every program must have a main function. It is possible to code any program utilizing only main function. It leads to a number of problems. The programs may become too large and complex, and as a result, the task of debugging, testing, and maintaining become difficult. If a program is divided into functional parts, then each part may be independently coded and later combined into a single unit. अब नीड क्यों हुई यूजर डिफाइंड फंक्शन की, कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड में हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किए हैं। क्योंकि जब एक हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन तो लाजमी था, नेसेसरी था कि मेन फंक्शन होता है। अब अगर आपका प्रोग्राम क्या होता था कि जब आप इनपुट प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते थे तो उसमें आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता था और फिर उसे मेंटेन करना, डिबग करना, टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता था यूजर के लिए। इसीलिए प्रोग्राम ये सोचा गया कि अगर आप किसी प्रोग्राम को फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और इजीली इंडिपेंडेंटली कुछ कोड लगा दें जिसकी मदद से आप इजीली एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल प्रोग्राम आपका फंक्शन अपना बन जाए, जिसकी मदद से आप इजीली डिबग भी कर सकें, टेस्ट भी कर सकें और उसे मेंटेन करने के आपको मुश्किल ना हो मेंटेन करने के लिए। इसीलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बना। कुछ और पॉइंट्स, these subprograms called functions are much easier to understand, debug and test. There are time when some types of operation or calculation is repeated in many points throughout the program. In such situations, we may repeat the program statement whenever they are needed. Another approach is to design a function that can be called and used whenever required. This saves both time and space. इस यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से आपके टाइम भी बचता है, टाइम भी सेव होता है और स्पेस भी सेव होता है। कि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि मे बी आपको अपने प्रोग्राम में बहुत सी स्टेटमेंट्स को दोबारा दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत हो, तो उसमें आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है कि जब आपका जी चाहे जिस प्रोग्राम को जिस वक्त भी उसे आप रिपीट एंड रिपीट अगेन कॉल कर सकें, दोबारा दोबारा अपनी मर्जी से कॉल कर सकें और उसी काम को दोबारा कर सकें। इस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने से आपका टाइम भी बच गया और स्पेस भी सेव हुआ। सो एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है डिपेंड करता है कुछ जरूरी एलिमेंट्स पर। In order to make use of user-defined function, we need to establish three elements of user-defined functions, which are follows.
आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। आपकी वो जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड वन इज फंक्शन कॉल। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स एनी हाउ आपको ऐड करने। सो एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली 3 तो हैं, लेकिन वो कहाँ यूज होती हैं और क्या करती हैं। द फंक्शन डेफिनेशन इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मॉड्यूल दैट इज स्पेशली रिटन टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन। टू यूज दिस फंक्शन, जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो we need to invoke is it at a required place in the program. This is known as the function call. जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जहां आपको जरूरत होगी कि आप उस फंक्शन को दोबारा जो है दोबारा कॉल करना चाहते हैं, दोबारा रन करवाना चाहते हैं, तो वहां पे कॉलिंग सेक्शन बेसिकली इसीलिए होता है कि जितनी दफा आप चाहें जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसे कॉल कर सकें, वो कॉलिंग सेक्शन होता है। The program that calls the function is referred to as the calling program or the calling function. जहाँ प्रोग्राम को कॉल किया जाता है उसे calling function कहा जाता है। The calling program should declare any function that is to be used later in the program. This is known as the function declaration or function prototype. जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं डेफिनेटली आपने उसे डिक्लेयर किया होगा, तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है वो फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाती है एलिमेंट, या फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहलाता है। अब यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर मैंने तीनों पार्ट्स को, तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, ताकि इजीली आप इसको समझ सकें कि डिक्लेरेशन क्या है, कॉलिंग सेक्शन क्या है और डेफिनेशन सेक्शन क्या है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि डिक्लेरेशन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन में फ्लोट, ये बेसिकली क्या है कि रिटर्न टाइप एक वैल्यू है जो हम कौन से डेटा टाइप में, जिस डेटा टाइप में आप वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहेंगे वो आपको लिखनी होगी। अगर आप वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, अगर ना करवा रहे हैं तो आप फ्लोट की जगह वॉइड लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लोट 8 नंबर्स आपका वो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आपने अपनी मर्जी से बनाया है, 8 नंबर यानी 2 नंबर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, तो प्रोग्रामर को पता होगा। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, उसका नाम रखा है ऐड नंबर्स। अब पेरेंथेसिस के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये बेसिकली होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स के कौन से आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स आप जो है पास करवा रहे हैं अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन से। तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करवाए जा रहे हैं, दोनों ही फ्लोट डेटा टाइप में है, एक फ्लोट ए एक फ्लोट बी, यानी 2 वेरिएबल ए और बी जिनकी डेटा टाइप फ्लोट है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो जस्ट डेटा टाइप डिक्लेयर करिए कि आप कौन से डेटा टाइप को जो है वो पास करवाना चाह रहे हैं। अगर आप वेरिएबल का नाम यहाँ पे शो ना करें तो डजंट मैटर, वो आप नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी एंड मेन, और नीचे जो है वो फ्लोट रिजल्ट। जाहिर है जो 2 नंबर ऐड होंगे, जो पैरामीटर्स पास होके जाएंगे तो उनका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो हमने थर्ड ये जो वेरिएबल लिया है फ्लोट के अंदर ही, उसका नाम रखा है रिजल्ट। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ पे आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया। सेकेंड वन इज कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर ही जब आपने ये चीजें कर ली तो अब आपको कॉल करना होगा। अब कॉल किसको करना है, क्या है फंक्शन रिजल्ट आपको, यानी आर्ग्यूमेंट जो आप पास करवाएंगे, आप जो रिटर्न करेंगे वैल्यू, वो वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, डेफिनेटली रिजल्ट के अंदर होगी ना। तो ये आपका हो गया रिजल्ट इज इक्वल टू आपके फंक्शन का नाम और पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर कर लिए थे उनके लिए वैल्यू क्या, क्योंकि हमने ऊपर उनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया था वेरिएबल को, तो इस पैरामीटर के अंदर हमने जो फ्लोट ए था उसे वैल्यू दे दी 0.5, क्योंकि वो फ्लोट है, डेफिनेटली वो डेसिमल पॉइंट्स में ही हमें वैल्यू लेनी होगी।
और फ्लोट बी के लिए जो हमने वैल्यू ली है वो 0.8 है और उसके बाद जो है सेमीकोलन या टर्मिनेटर। तो ये होता है आपके कॉल फंक्शन को कॉल करने का तरीका। रिटर्न जीरो, यहाँ पे रिटर्न जीरो क्यों है? पता है कि जब भी हम मेन बॉडी अगर इंट मेन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है, अदरवाइज हमारे जो वैल्यू होगी, जो प्रोग्राम हम रन करवाना चाह रहे हैं वो वैल्यू पास नहीं होगी, रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप वॉइड मेन वॉइड यूज कर रहे हैं तब आपको रिटर्न जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेन बॉडी आपकी क्लोज हो गई जब आपने फंक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद आप उसी फंक्शन को, सेम फंक्शन जो ऊपर आपने डिक्लेयर किया था, नीचे जाके आप उससे जस्ट डिफाइन करेंगे सेम वही फ्लोट जो इसमें आपने वैल्यू को रिटर्न करना है, आपके फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर दो आर्ग्यूमेंट जो आपने पास करवाए थे। नीचे आके जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसके बाद आपको फिर दोबारा कर्ली ब्रेसेस अपनी बॉडी फंक्शन की जो फंक्शन अभी आपने बनाया है दोबारा उसकी बॉडी को ओपन करना होगा कर्ली ब्रेसेस से। उसके बाद रिटर्न, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न क्या रिटर्न करवा रहे हैं हम? a प्लस बी। जो रिजल्ट आएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू उन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो ही वैल्यू रिटर्न होगी। सो नेक्स्ट, टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं अब यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ आप इन्हें टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी भी कह सकते हैं या पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन भी ले सकते हैं कि जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जाता है तो वो ये 4 टाइप्स होती हैं या 4 ये पॉसिबिलिटीज होती हैं जिस तरीके से आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। नंबर 1 जो पॉसिबिलिटी होती है या टाइप होती है वो ऐसी होती है कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ऐसा फंक्शन बनाया जाए जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी पास ना करवाया जाए और कोई भी वैल्यू भी रिटर्न ना करवाई जाए। सेकेंड, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें आर्ग्यूमेंट तो पास ना हो लेकिन वैल्यू को हम रिटर्न करवाएं। थर्ड, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें आर्ग्यूमेंट भी पास हो लेकिन वैल्यू रिटर्न ना हो। एंड फोर्थ वन इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी पास करवाए जाए और वैल्यू को भी रिटर्न किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 पॉसिबिलिटी या टाइप, function with no argument and no return value. Such functions can either be used to display information or they are completely depend on user inputs. Inside in an example of a function which takes two numbers as an input from user and display which is the greater number. अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम जो बनाया है आपको सामने नजर आ रहा है। इसके अंदर हमने क्या किया है, ये प्रोग्राम वो है जिसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवा रहे हैं और ना ही वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें भी बताया था कि जब भी आप वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएंगे तो वहां पे आप वॉइड ही लिखेंगे आपके फंक्शन का नाम जो कि ग्रेट नंबर है, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर ही हमारा टास्क है कि हमें ग्रेटर नंबर को मालूम करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब ये पैरेंथेसिस जो है इसके अंदर अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास होता तो लिखा जाता, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा तो ये पैरेंथेसिस ब्लैंक ही होगी। सेमीकोलन ये कहलाएगा फंक्शन की डिक्लेरेशन। उसके बाद आपकी मेन बॉडी, कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे क्या है आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि ना ही कोई वैल्यू रिटर्न की जा रही है ना ही आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, तो जस्ट आप फंक्शन का नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। रिटर्न जीरो जो कि पहले भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम एंड मेन यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिटर्न जीरो आ रहा है। अगर वॉइड मेन वॉइड यूज किया जाता तो रिटर्न जीरो की जरूरत नहीं होती। मेन बॉडी आपकी जो मेन फंक्शन की है वहां वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। नीचे आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर आपने डिक्लेयर किया था वाइड, क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, आपके फंक्शन का नाम और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है।
अब यहाँ पे आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको फंक्शन को डिफाइन करना है वहां आपको टर्मिनेटर यूज नहीं करना, सेमीकोलन नहीं लगाना। उसके बाद आपको अपने फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस से उसे पिन करना है, डिफाइन करना है नीचे, क्योंकि जाहिर है कोई ना कोई टास्क तो हमें लेना है ना, चाहे हम वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे, हम कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं करवा रहे, लेकिन अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है तो उसमें कोई ना कोई टास्क तो है ना, ग्रेटर नंबर तो हमें मालूम करने हैं ना कि नंबर कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमने इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं आई और जे के नाम से। अब हम इसे, जैसे कि मैंने पहले भी यहाँ पे आपको बताया कि हमने यहाँ पे 2 इनपुट नंबर लिए हैं फ्रॉम यूजर की मदद से। जब भी हम स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं वो इनपुट के लिए कि यूजर अपनी मर्जी से जब फंक्शन को, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा, कंपाइल करवाएगा, तो उस वक्त जो उसका दिल चाहेगा, जो भी वैल्यू वो देना चाहेगा वो ले लेगा। तो यहाँ पे और जो printf हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ये जस्ट प्रिंट करने के लिए कि हम जो 2 नंबर ले रहे हैं उसका मकसद क्या है, वो क्यों लिए जा रहे हैं। तो वो जस्ट एक मैसेज प्रिंट होगी printf के अंदर। फिर स्कैनएफ करवाए हैं हमने 2 वेरिएबल आई और जे। आपको पता है कि स्कैनएफ के जब हम करते हैं तो वो बॉडी उसकी किस तरह से होती है, printf की कैसे होती है, ये तो आप बेसिक्स में, सी के बेसिक्स में अच्छी तरह समझ चुके थे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर मालूम करना है तो हमने कंडीशन लगा दी इफ की कि आई ग्रेटर देन जे हो तो क्या हो, बॉडी के प्रिंट इफ हो द ग्रेटर नंबर इज आई के अंदर यानी परसेंट डी, जो भी मतलब वैल्यू आप देंगे जो नंबर होगा वो वहां पे आएगा। एल्स अगर वैल्यू आई से, आई की वैल्यू जे से ज्यादा ना हो तो एल्स क्या हो जाए, प्रिंट इफ हो जाए कि ग्रेटर नंबर जो है वो जे। तो ये था पहला प्रोग्राम सी का, जिसके अंदर सी का के फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक प्रोग्राम, जिसकी मदद से हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया, रिटर्न वैल्यू नहीं करवाई, लेकिन 2 वैल्यूज मतलब ग्रेटर नंबर हमने मालूम किया, जो कि डिफरेंशिएशन सेक्शन में जाके हमने 2 वेरिएबल बना के उनको कंपेयर किया। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप जो इनपुट देंगे आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी जे से तो वो प्रिंट होगी, इधर एल्स में क्या होगा कि फिर जो जे की वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर देन होगी तो वो आएगा। अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो है वो है टाइप कहे या पॉसिबिलिटी कहे, इसे पॉसिबिलिटी फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो हमने प्रीवियस किया था। अब फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू, इसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवा रहे लेकिन वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। तो हम सेम उसी प्रोग्राम को, एग्जाम्पल को जो मैंने प्रीवियस किया है, मैंने वही जो आपके प्रोग्राम बनाए हैं वो सेम प्रोग्राम मतलब टास्क हमारा सेम ही है, जस्ट उसमें मॉडिफिकेशन की है कि क्या चेंजिंग हो रही है। अगर हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो कहाँ चेंजिंग होगी, अगर आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं तो कहाँ चेंजिंग होगी। तो इसमें क्या है कि आप, हम एक रिटर्न नंबर करवा रहे हैं वो चीज ग्रेटर होगा अमंग्स द 2 इनपुट नंबर्स। तो अब आप इस प्रोग्राम के अंदर देखें सेम उसी तरह से है, लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो हमने पहले वहां पे क्या लिया था, वॉइड था, यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यू हमें रिटर्न करवानी है, आपके फंक्शन का नाम है और आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं हो रहा तो सेम पैरेंथेसिस ब्लैंक ही है। उसके बाद मेन बॉडी, फिर यहाँ पे हमने एक जाहिर है हमें जो वैल्यू रिटर्न करवानी है तो वो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर करवानी होगी। तो यहाँ पे हमने इंटीजर रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमें वैल्यू को रिटर्न करना है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर, आपके फंक्शन का नाम, और वही आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं हो रहा तो बिल्कुल ब्लैंक पैरेंथेसिस। यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अब चेंजिंग क्या हो गई,
क्योंकि वहां पे ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही थी ना आर्ग्यूमेंट पास हो रहा था, तो वहां जस्ट आपके फंक्शन का नाम था और पैरेंथेसिस। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो यहाँ हम रिजल्ट ले रहे हैं जहाँ आपकी वैल्यू रिटर्न होनी है इज इक्वल टू आपके फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ प्रिंट होगी, द ग्रेटर, इसीलिए यहाँ पे हमने printf का फंक्शन यूज किया है। द ग्रेटर नंबर इज, आपको पता है कि ये printf करवा रहे हैं हम रिजल्ट को, तो इसीलिए हम डेटा जो है यहाँ पे परसेंट ही लिया हुआ है, टीचर के लिए हम लेते हैं। तो अब आगे आपके फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ भी सेम उसी तरीके से जैसे आपने डिक्लेयर किया था सेम वही हमने नीचे लिखा है, इंटीजर ग्रेड फंक्शन का नाम। लेकिन चेंज सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपको सेमीकोलन नहीं लगाना डेफिनेशन की। उसके बाद फिर मेन बॉडी आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन की, दो वेरिएबल उसी तरह से हमने ले लिए। यहाँ पे हमने तीसरा वेरिएबल जो है ग्रेटर नम के नाम से भी लिया है कि जहां पे हमें वैल्यू को रिटर्न करवाना है। सो अब नीचे उसी तरह से हमने printf scanf दो वेरिएबल्स को करवा लिया, कंडीशन लगा दी कि इफ i ग्रेटर देन j हो तो रिटर्न वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर नम इज इक्वल टू i हो जाए, और एल्स अगर ग्रेटर नम इज इक्वल टू j हो, एल्स यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई है रिटर्न में, तो आपका रिटर्न हो जाए ग्रेटर नम। अब थर्ड वन क्या है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ऐसा फंक्शन बनाया है यहाँ पे हमने जहाँ आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। तो सेम हमने उसी फंक्शन को एग्जाम्पल को अगेन एंड अगेन यूज किया है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जस्ट उसमें मॉडिफिकेशन होती आई है। वही आपका ग्रेटर नम के नाम से है फंक्शन, इसमें हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, इंटीजर वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट, बट नॉट बी रिटर्निंग, कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं होगी। ये सेम उसी तरह से आपका प्रोग्राम है। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या आ गई कि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो उसी तरह से वॉइड आ गया, आपके फंक्शन का नाम आ गया। और आर्ग्यूमेंट के अंदर क्योंकि दो हम आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं, तो उस पैरामीटर, क्या पैरामीटर हमें जो है वो पास करवाने हैं आर्ग्यूमेंट, तो वहाँ पे डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप के दो वेरिएबल हमने ले लिए हैं। यहाँ आप पे इट्स अप टू यू, अगर आप यहाँ पे जस्ट डेटा टाइप लिख लें और वेरिएबल को नाम ना डिक्लेयर करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से भी, क्योंकि सब प्रोग्राम्स में एक ही तरह से हमने किया है, तो मैंने जो किया है वो डिक्लेरेशन सेक्शन में वेरिएबल का नाम भी दे दिया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मेन बॉडी, दो वेरिएबल, उसी तरह printf, scanf। अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो जस्ट आपके फंक्शन का नाम और जो आर्ग्यूमेंट आप पास करवा रहे हैं, यानी जो आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर आपने ली थी वैल्यू, वो पास होके कौन से वेरिएबल्स के अंदर आएगी, तो वो वैल्यू जो आएगी वो i और j के अंदर आएगी। ये आपका फंक्शन का कॉलिंग है। उसके बाद उसी तरह से आपने बॉडी को क्लोज कर दिया, फिर फंक्शन को डिफाइन किया, वाइड रेगनम सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे है कि जो वैल्यू आपकी i और j के अंदर, यानी a और b की वैल्यू जो वहाँ पे आएगी, वो पैरामीटर्स पास होके आपके इंटीजर x और y में जाएगी, और वो ही रिजल्ट में आपको जो प्रिंट होगा वो वही वैल्यू होगी। तो सेम उसी तरीके से हमने कंडीशन लगा दी, दो वेरिएबल को प्रिंट करवाया कि इफ अगर x y से बड़ा हो तो प्रिंट एफ हो जाए कि ग्रेटर जो नंबर है वो x है, और अगर वो ना हो तो एल्स प्रिंट हो जाए कि ग्रेटर नंबर आपका y होता है। तो लास्ट जो आपका है कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम आर्ग्यूमेंट भी पास करवा रहे हैं और वैल्यू को भी रिटर्न करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट बोथ एंड ओनली द लॉजिक इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी के अंदर हम किस तरह से वैल्यू को रिटर्न भी करवा रहे हैं और आर्ग्यूमेंट पास भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर इंट जो है आपका इंट
क्रिएट नम, क्योंकि वैल्यू जो हम रिटर्न करवाएंगे वो इंटीजर करवाएंगे, आपके फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट 2 जो हम पास करवा रहे हैं, इंटीजर ए और बी। सेम डिक्लेरेशन, आर्ग्यूमेंट पास होगा, वैल्यू रिटर्न होगी तो वहाँ पे इंट आएगा, अदरवाइज वॉइड आएगा। आर्ग्यूमेंट पास होंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर वो डेटा टाइप आएंगे, वेरिएबल आएंगे, अगर नहीं होंगे तो वो ब्लैंक रहेगा। मेन बॉडी, तो वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल जिसके अंदर हमें वैल्यू रिटर्न करना है, रिजल्ट, प्रिंटफ, स्कैनफ हमने करवा लिया। अब वैल्यू जहाँ रिटर्न करना है, जहाँ रिजल्ट लेना है, वो रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रेटर नम, और जो पैरेंथेसिस, जो पैरामीटर्स वैल्यू जो है आप आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं, वो ये हो गया आपका फंक्शन के कॉलिंग। उसके बाद जहाँ आपको वैल्यू को रिटर्न करवाना है वो हमने इसलिए ये प्रिंट इफ लिया है। उसके बाद मेन बॉडी को हम क्लोज कर देंगे, रिटर्न 0 1। अगेन मैं बता दूं कि रिटर्न 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि इंट मैन हमने लिया है, अगर वॉइड मैन वॉइड आप लोग लेंगे तो यहाँ आपको रिटर्न 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका फंक्शन का डेफिनेशन उसी तरीके से जैसे डिक्लेयर किया जाता है, सेम डिफरेंस, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या करना है आपको कि सेमीकोलन नहीं लगाना। मेन बॉडी आपकी यूजर डिफाइंड फंक्शन की वही कंडीशन आपने लगा दी कि अगर x ग्रेटर देन y हो तो रिटर्न हो जाए x, एल्स क्या हो, रिटर्न हो जाए y, अगर वो उससे बड़ा ना हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।